Sharbhodey Namaskar all of you. I am Srishti. Today we will start the explanation of chapter 3, synthetic fiber and plastic. In a previous class, I already provided you the rest explanation of this chapter, but today I explain the mostly plastic of this chapter and the whole remaining part of this chapter. So student, in this chapter we learn about the plastic, types of plastic, properties of plastic, problem with plastic, conversion of action, what can you do, what we do to preserve our environment related to the plastic. I hope student, you in a previous class you learned about the synthetic fiber and different types of synthetic fiber and their use. So what is plastic? A material is said to be the plastic. It can be modulated or form in a different shape. ऐसा मटेरियल जो शेप या प्लास्टिक कहलाता है, जो कि मॉड्यूलेट होता है, फॉर्म करता है डिफरेंट शेप में. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सिंथेसाइजिंग द केमिकल प्रोसेस. ये केमिकल प्रोसेस से सिंथेसाइज करके हम लोग प्लास्टिक उत्पन्न करते हैं. इवन वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक इन आवर environment, like poly bag which is we use in a market, different types of poly bag, even a lunch box, a pen, pencil, instrument box, tiffin box, bottle, fan, different types of utensils, like different types of utensils in your home. Even we cook it in a plastic utensils. We prepared electric wire with plastic, even a switch. Everything in our environment, in our daily life, we use plastic in a different purpose and a different types of things. Okay, there are two types of plastic. Plastic, plastic and thermosetting plastic. There are especially two types of plastic according to their categories. इसके categories के according इस plastic जो दो तरह के होते हैं. First है thermoplastic, is the process of softening by heating and hardening on the cooling and the repeated again and again soften the plastic. It get different shape. थर्मोप्लास्टिक कैसा प्लास्टिक है जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार किसी भी शेप में कन्वर्ट करने के बाद फिर से उसका यूज कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं, हीट करने के बाद उसको कोल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट शेप में बना सकते हैं, उसका बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक का यूज एक बार किसी चीज़ को बनाने के बाद जब वो बेकार हो जाता है, जब यूजफुल नहीं होता है, उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं after providing the heat. But for like a polythene, you see that जो हम लोग देखते हैं कबाड़ी वाले लोग को जो बेचते हैं, हम लोग प्लास्टिक को ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो क्या करता है, वो ले जाता है दिस प्लास्टिक को, ये कलेक्ट करके उसे डिफरेंट न्यू फॉर्म में, न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आफ्टर द providing a heat and different chemical process, it converted in a different product. Next one is thermosetting plastic. What is thermosetting plastic? The plastic which is formed at once. It does not melt after heating again. यार ये प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जो क्या करते हैं, एक बार इसे कोई शेप दे देते हैं या किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दोबारा हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते. इसको हीट के थ्रू मेल्ट करके दोबारा उस डिफरेंट प्रोडक्ट में उसको फॉर्म नहीं कर सकते. सो दिस प्लास्टिक इज लाइक अ बेगालाइट, फॉर्मिका एंड मेल्मिका. दीज आर द एग्जांपल ऑफ thermosetting plastic. Now we learn about the properties of plastic. Plastic is inexpensive, light weighted, yet strong. क्या प्लास्टिक कैसा होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, लाइट वेटेड होता है, स्ट्रांग होता है. इस वजह से आज की जनरेशन में हमारे ह्यूमन लाइफ में ये बहुत ही पॉपुलर हो गया है. लाइट वेटेड होने के कारण, कम एक्सपेंसिव होने के कारण सब लोग यूज कर रहे हैं. मेटल इसके कंपैरिजन में मेटल क्या होता है,
कॉस्टली होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, इवन प्लास्टिक में ड्यूरेबिलिटी होती है। दे कैन बी मेड इन ए थिन एंड फ्लेक्सिबल एज वेल एज थिक एंड टफ। ये कैसा होता है, थिन होता है, मोटा भी बनता है, फ्लेक्सिबल होता है, इवन थिक होता है, पतला भी बना सकते हैं, टफ भी बना सकते हैं, हार्ड भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, और हम लोग इसको कलर्ड भी कर सकते हैं। ये सॉफ्ट, इस प्लास्टिक क्या होता है, सॉफ्ट भी होता है, हार्ड भी होता है। जब हम लोग पॉली बैग यूज करते हैं, जो मार्केट्स में हम लोग सामान लेने जाते हैं, तो वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। बट हम अपना लंच बॉक्स देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखते हैं, जो प्लास्टिक का बना होता है वो हार्ड होता है। तो ये डिफरेंट पर्पस के लिए और डिफरेंट कारण से बना होता है, और इवन ये स्मूथ भी होता है और रफ भी होता है। तो इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये चीप कॉस्ट में लाइट वेटेड है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट चेंज इन अ केमिकल प्रोसेस और नॉट डिस्ट्रॉय। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि इन्वायरमेंट में कभी खत्म नहीं होता है। इसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक हम लोग जैसे प्लांट हो गए, वुड हो गए, ये हर डिके हो जाते हैं, तो ये कैसे मटेरियल्स हो गए, बायोडिग्रेडेबल। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में क्या होता है कि ये कभी नष्ट नहीं होता है। सो प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, दैट्स व्हाई इट इज अ काउज ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर डिफरेंट पर्पस। वी सी इन द नेक्स्ट टॉपिक। दे आर वाटरप्रूफ इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होता है, वाटरप्रूफ होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वाटर कंटेनर्स लाइक वाटर बॉटल, ये सारे कंटेनर्स बनाने के लिए करते हैं। इवन ये केमिकल्स के साथ रिएक्ट भी, बहुत सारे केमिकल्स के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोरेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए केमिकल्स को, लिक्विड को, प्लास्टिक का यूज करते हैं। इवन जब व्हेन यू परचेज अ ऑयल और मिल्क, इट कम फ्रॉम द प्लास्टिक पॉली बैग। पॉली बैग में प्लास्टिक कंटेनर में आता है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता है और वाटर और लिक्विड सब्सटेंसेस में इंसॉल्युबल नहीं है। दे हैव ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये कैसा है, पुअर कंडक्टर है, हीट का ये पुअर कंडक्टर है, मतलब इसमें हीट एक्सपेंस नहीं होता है। इसलिए हम लोग बहुत सारे यूटेंसिल्स में, मतलब खाने वाले बर्तन में, जो बर्तन होता है हम लोग उसमें हैंडल्स के रूप में प्लास्टिक का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बैक कंडक्टर होता है हीट का। इट इज ऑल्सो बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैक कंडक्टर तो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हमारे देखते होंगे आपके घर में, हमारे स्कूल्स में वायर जो बने होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, फैन होते हैं, ये सारे इक्विपमेंट होले, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हम लोग बेसिकली कह सकते हैं किस चीज़ से बने होते हैं, प्लास्टिक से। वाई, बिकॉज इट इज अ बैक कंडक्टर ऑफ हीट। दे हैव नो रिएक्शन विथ वाटर एंड एयर। ये एयर और वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। दे डू नॉट कोट ईजिली, ये कोट भी नहीं होता है। इट इज, दैट्स वाई इट इज यूज फॉर स्टोर केमिकल सब्सटेंस। ये एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को भी स्टोर करने के लिए हम लोग प्लास्टिक के इक्विपमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम विथ प्लास्टिक। We see that plastic is a non-biodegradable substance. ये कभी भी नष्ट नहीं होता है, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। When we it can't destroy, when we throw the plastic in a river water or any water, it pollute our river water, sea water. इट कांट डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वहाँ कभी भी नष्ट नहीं होता है। इवन ये क्या करता है, एक्वेटिक एनिमल्स के लाइफ के लिए भी डेंजर हो जाता है। जब हम लोग इसे लैंड में छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं, तो ये क्या होता है, सॉइल के साथ डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये बहुत कभी कभी ये हम लोग किसी एनिमल्स के रीज़न का, डेथ के रीज़न का भी कारण हो जाता है। जब हम लोग इसी तरह किसी भी तरह में प्लास्टिक्स के इक्विपमेंट को छोड़ देते हैं, प्लास्टिक पॉली बैग्स को छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ एनिमल्स उसको समझ के, कुछ फूड मटेरियल्स समझ के उसे खा जाते हैं, जो जाके स्टोर हो जाता है। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वो कैपेसिटी नहीं होती कि प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर सके, और कहीं ना कहीं उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में फंस जाने के कारण कुछ एनिमल्स का डेथ हो जाता है। तो इसलिए ये एक्वेटिक एनिमल्स और मैरीन एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स और मैरीन एनिमल्स आर सेम,
और लैंड एनिमल्स के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रीज़न है। और जब हम लोग प्लास्टिक को बर्न करते हैं, व्हेन वी बर्न द प्लास्टिक it converted into gaseous form and these gases is very harmful for us। ये जो gases होता है बहुत ही harmful होता है, इसमें बहुत ही बड़े अमाउंट में कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है, जो हमारे श्वास लेने में, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने में का रीज़न बनता है। So it is a very dangerous for us, so that's why government banned for the using of poly bags, use paper bag for in escape of प्लास्टिक पॉली बैग। नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ एक्शन। कंजर्वेशन एक्शन हम लोग क्या यूज कर सकते हैं प्लास्टिक्स को यूज करने के लिए? प्लास्टिक्स के बिहाफ में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? रिडक्शन द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, यूज द पैकिंग द यूजली इमीडिएट थ्रो अवे। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि इसको रिडक्स करेंगे, इसके अमाउंट को। प्लास्टिक की जो इक्विपमेंट जो बनती है उसका यूज हम लोग कम से कम करेंगे, जिससे कि इस चीज़ के प्रॉब्लम से हम लोग बच सके। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग एंड रीयूज द प्लास्टिक शुड बी इन्वायरमेंट क्लीन। रिसाइकिल करेंगे और रीयूज करेंगे, मतलब जो प्लास्टिक का यूज नहीं है उसे कलेक्ट करके हम लोग रिसाइकिल पर्पस में भेजेंगे और जब न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा उसका हम लोग फिर से यूज करेंगे। नेक्स्ट है प्लास्टिक रैपिंग बैग शुड कैरी द वार्निंग लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द डेंजर ऑफ प्लास्टिक। हम लोग वही प्लास्टिक जो गवर्नमेंट की है, प्लास्टिक पॉली बैग्स को हम लोग पूरी तरह से बैन करेंगे। उसके बिहाफ में हम लोग पेपर बैग यूज करेंगे, जूट बैग यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन होने से बचा सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट यू कैन डू। अब हम लोग क्या कर सकते हैं प्लास्टिक से बचने के लिए, प्लास्टिक को रिड्यूस करने के लिए और अपने इन्वायरमेंट को फ्री करने के लिए? बाय प्रोडक्ट विथ लेस प्लास्टिक पैकेजिंग। ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग परचेज करें जो जिसमें कम प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज हुआ हो। पेपर पैकेजिंग हो। शॉपर शुड बी यूज द ओन बैग और रिसाइकिल फ्री बैग्स। मतलब जो शॉपर्स होते हैं, खरीदारी करने वाले, क्या करें, पेपर बैग्स का यूज करें और अपना खुद का ओन बैग यूज करें, जिससे क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम्स है प्लास्टिक के, वो प्लास्टिक पॉली बैग्स का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, इवन उसे अवॉइड करें। नेक्स्ट है सपोर्ट रिसाइकलिंग स्कीम एंड प्रमोट सपोर्ट ऑफ वन लोकल एरिया। ये हम लोग को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए रिसाइकिल सेगमेंट्स को, रिसाइकिल पे जोर देना चाहिए। इवन हम लोग को आसपास के एरिया में भी लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है हर चीज़ को ठीक करने, हमारी लोकेलिटी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वी आर अवेयर अबाउट आवर लोकेलिटी। हम लोग अपने लोकेलिटी में अवेयर हों और अवेयरनेस फैलाएं। प्लास्टिक आर प्रमोटेड प्रॉपर डिजॉल्व प्लास्टिक इन योर होम। प्लास्टिक को प्रमोट करें प्रॉपर डिजॉल्व करने के लिए घर पे ही। नेवर डिस्पोज प्लास्टिक इन अ स्वेज सिस्टम नदी नाले में और नाले में हम लोग को नहीं डालना चाहिए प्लास्टिक्स को। पिक अप द प्लास्टिक लिटर विथ सी इन अ वेंसिटी डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर प्लेस। इनकरेज अदर टू लाइकवाइज। इवन हम लोग को इसको कहाँ इधर उधर प्लास्टिक्स को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये एनिमल्स के हार्म का रीज़न होता है। सो इसलिए इसे हम लोग प्रॉपर डस्टबिन में प्रॉपर प्लेस पे करना चाहिए। इवन दूसरों को भी इससे रिलेटेड अवेयर करना चाहिए। नेवर यूज प्लास्टिक लिटर इन अ स्ट्रीट ऑन द पेमेंट ऑफ ड्रेस। यही बताया जाए नदी नाले और बड़े बड़े तालाबों में जहाँ कचरे और चाहे जो स्वेज जो एरिया जाता है उस एरिया में हम लोग को प्लास्टिक थ्रो नहीं करना चाहिए। सेट द एग्जाम्पल ऑफ अदर। हम लोग को दूसरे के लिए एक अपना एग्जाम्पल्स बनना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए दूसरों को कि आप भी ऐसा ना करें। क्योंकि अगर हम एक को भी, अगर आप सिंगल पर्सन एक पर्सन को भी अच्छा कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो इन सब चीज़ को यूज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस एक से दूसरे और दूसरे एक लॉन्ग फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हेल्प कर सकता है। सो नेक्स्ट सबसे बड़ी बात है कि वी यूज 4R principle. 4R principle is very useful to reduce the plastic and plastic population. First one is refuse, reduce,
reuse and recycle. These formula is given by our government or any scientist to avoid the plastic population. First one is 4R, that means first one is refuse, reduce, reuse और recycle. Refuse मतलब हम लोग रिफ्यूज करेंगे प्लास्टिक का, जो रिड्यूस करेंगे कम यूज करना इस्तेमाल करेंगे, कम इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट है रीयूज करेंगे, मतलब एक यूज करने के बाद उसके बाद फिर से उसका यूज करेंगे, मतलब उसका हम लोग बार बार प्लास्टिक को कंज्यूम बाहर से बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे, उसका यूज करते रहेंगे. और रिसाइकिल मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने लाइफ प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करेंगे. आई होप दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. यू लर्न इट वेरी वेल. यू स्टडी एट होम. सो कीप इट अप. वेल डन एंड डू stay home, keep healthy and also study more. Thank you.